next part of the video of laws of motion. So we are on the right now, the fourth video of what particular laws of motion. Last lecture what we did this Newton's second law of motion, and we did the derivation of momentum and what is the relation between momentum and force. And in this video we'll talk about the solved examples, how to solve sums on momentum and second law of motion, right? And we'll also study what third law of motion. So what exactly we are going to do? Numericals on second law of motion, and we are going to study the third law of motion. Okay, so I'll start with the what numericals. Okay, there are solved examples which are given in your textbooks. I'm solving those particular solved example. Yes, and the rest of the unsolved example you guys have to solve and you have to try. Obviously, if you have any doubts, we are going to discuss about it. Okay, so so I'll start with the solved example which we have. Okay, so before starting, what I'll do, I'll just write the formulas which we are going to use and which we have done in the second law of motion. So what exactly formulas we have learned? We have learned F is equal to ma. We have learned second the formula which is what change in momentum is equal to what mass into what change in velocity upon time, rate of change of momentum. We have studied what momentum ka formula, yes or no, change in momentum is equal to mass into what change in velocity. We have studied what फोर्थ इनिशियल मोमेंटम. ठीक है, इनिशियल मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? इनिशियल मोमेंटम. ओके, आई राइट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या रहेगा? एम यू. देन वी हैव अ फॉर्मूला फॉर व्हाट? फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम फॉर्मूला इज एम बी. yes or no? So all this formula what we have studied about in the last video of the derivation of all those things. And there is one more formula which we have done, a is equal to what? V minus u by t. We had used this formula. Okay, we had used this formula in the derivation as well. Okay, so there are how many? Basically this 6 formulas. Out of the 6 formula we are going to use few of the formulas, okay, at depending on the what exactly question they are asking. Okay, so I'll start. What you can do, you can just pause the video, okay, and what take the screenshot, or what you can do, you can just note it down. Okay, I'll advise you, please note down all the formulas here. Okay, please note down all the 6 formulas so that you can. This is what we are doing, part C. So part chapter 3, part C, 3C के formulas. ठीक है, you can note down and give a heading of that particular thing. Give a heading, part 3C formula. So this 6 formulas you guys have. Okay, I'll rub this. ठीक है, I'll wait for 3 seconds. 3, 2, 1, done. Sure. ठीक है, I hope video pause कर दिया है. Clear है? ठीक है, so we'll start with the what solved example. ठीक है, solved examples are given on in your textbook page number 68. ठीक है, so I'll just go through. I'll just read the question for you guys. Okay, and तुम लोग भी side by side क्या तुम्हारे हाथ में textbook होना चाहिए so that you can understand the question. Because right now I won't be able to write the entire question here for you guys. Obviously I'll be writing given. ठीक है, I'm reading a question. So how much force is required? Okay, the question is how much force is required? Okay, to produce an acceleration of 2 meter per second square. ठीक है, produce an acceleration. Okay, so how much force is required? ठीक है, to produce an acceleration of what? 2 meter per second square of a mass of 0.08 kg. It is as simple as that. ठीक है, कुछ difficult नहीं है. यहाँ पे given, they are given all the values, yes or no. ठीक है, what formula we can use? A first formula, F is equal to ma. I'll write formula. ये given है, ये 2 find है, yes or no? F is equal to ma. F we need to find. Mass they are given as 0.8 into acceleration they are given 2. So what will be the answer? 1.6 newtons. So F is equal to 1.6 newtons. This amount of force is required to move a mass of 0.8 kg by the acceleration of what? 2 meter per second. इसका मतलब है कि 0.8 kg का कोई एक particular body है, ठीक है, उसको अगर 2 meter per second square से accelerate करना है, so मुझे 1.6 newton of क्या करना पड़ेगा? Force apply करना पड़ेगा वो body पे. Yes or no? If I apply 1.6 newton of force, तभी वो body क्या होगा? 2 meter per second square acceleration के से क्या करेगा? Move करेगा. What is the unit of force? The unit of force is Newton. We know this, right? Yes or no? So first question was very simple, very basics. ठीक है? Now we'll do the second sum. ठीक है? What exactly second sum? So what you can do?
when I am solving that particular thing, you also can pause the video and side by side तुम लोग भी solve करो. So if it is a theory part, yes, obviously you have to understand that particular theory part. तो जब भी theory part भी तुम लोग वीडियोस देख रहे हो, so please make sure कि तुम्हारे हाथ में टेक्स्ट बुक है. You are referring to that particular textbook, yes or no, side by side. जैसे तुम लोग क्लासरूम टीचिंग में करते हो, क्लासरूम टीचिंग में टीचर इज व्हाट बेसिकली एक्सप्लेनिंग समथिंग, अ थ्योरी पार्ट और समथिंग, एंड यू हैव अ टेक्स्ट बुक. सो प्लीज फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एज यू आर वाचिंग अ वीडियो. डोंट वॉच अ वीडियो एज अ यूट्यूब वीडियो, अदर वीडियोस जैसे बाकी सब मूवीज है, बस तुम लोग बैठे हो आराम से बेड पे बैठे बैठे ऐसे देख रहे हो. डोंट डू दैट, कम ऑन. Right now, whenever you are basically studying a particular YouTube video, ठीक है, my videos or any other subjects video, yes or no, what you have to follow that, please sit to a proper position. Yes, हमारा स्टडी टेबल होगा या फिर डाइनिंग टेबल है, प्रॉपर पोजीशन में with your notebook, pen, pencil, textbook, everything should be there so that you can note it down, you can understand the particular concept nicely. So don't watch for the sake of it, सिर्फ देख मत लो, अरे I have seen that. No, ठीक है, do some efforts by yourself also, yes or no. During this condition, we know that lockdown and everything is going on, so it becomes difficult for a teacher as well, for a student as well. So this is what basically a guidelines which may help you. So do this for all the videos after this, okay, clear है, ठीक है. So you can solve this sum simultaneously जो मैं कर रहा हूँ. So it's better that तुम लोग का practice हो रहा है, yes or no, clear. So the next question I'm reading, I hope you have a textbook in front of you. Page number 68. A force acts for a 0.1 second. Okay, जो भी information दिया हुआ है, I'll be writing it for time. ठीक है, given time कितना दिया हुआ है, 0.1 second. On a body of mass 1.2 kg. ठीक है, 0.1 second, mass 1.2 kg. Initially at rest मतलब u is equal to क्या होगा, 0 meter per second. ठीक है, एंड पता है हम लोग को. The force then cease to act and the body moves through the 2 meters. मतलब वो displacement कितना कर रहा है, 2 meters. ठीक है. In the next 1 second, okay. Find the magnitude of force. So we need to find what magnitude of force. ठीक है. And time given है कि after 1 second. ठीक है. Next 1 second में हम लोग को find करना है. So this is what information they have given. Now when the force cease to act, the body will move with a constant velocity. Since it moves the distance of 2 meter in 1 second, therefore अभी कैसे तुम लोगों को बोला है कि वो 2 meters in 1 second क्या कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है. ठीक है, as soon as force क्या किया, अप्लाई किया. That means we can find the velocity. Yes or no? What is the formula for velocity? Velocity is equal to a displacement upon time. So if I write here velocity is equal to displacement upon time. Now you'll say, sir, why you are finding velocity? Because what they are talking about, they want force. For force required acceleration, we have initial velocity. Yes or no? Acceleration का formula क्या? What is acceleration? V minus u by t. They have given time 0.1 second. They have given initial velocity, but they have not given the final velocity. But final velocity के लिए they have given hint. ठीक है, final velocity के लिए hint दिया हुआ है कि a particular body 2 meters के लिए 1 second के लिए ट्रैवल कर रहा है, 2 meter distance 1 second के लिए ट्रैवल कर रहा है, तो उसका velocity मिल सकता है कैसे? V is equal to what? 2 by 1, which is what? 2 meter per second. So this is the final velocity we found out. Yes or no? We found our final velocity. Now we can use this formula. Acceleration is equal to V minus u. This formula we can use. Yes or no? I'll be using a different marker. ठीक है, तुम लोग क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो, क्या हो गया तुम लोग का 2 minus 0 अपॉन टाइम कितना है, 0.1. Getting my point? See, same thing they have done. Clear है? 2 minus 0 upon 0.1. So what will be your answer? 2 minus 0 is 2 upon 0.1, which is equal to 0.2 meter per second square. So what will be your acceleration? Acceleration will be, okay, 1 second. Okay, sorry, 0.1 है, so it becomes 20 meter per second. Yes or no? 0.1 डिनोमिनेटर में है. ठीक है, so when 0.1 goes up, ठीक है, that becomes what, 10. I'll give you simple thing. ठीक है, ये सब चीज रब कर देता हूँ. ठीक है, फर्स्ट हम लोग ने स्टेप 1 क्या किया, ओके, ये स्टेप 1 है तुम लोग का, फाउंड आउट किया. यस, वेलोसिटी मिल गया. ये तुम लोग का स्टेप 2 है, एक्सेलरेशन फाइंड करो. क्लियर है? मुझे मास कितना दिया हुआ है, मास इज गिवन 1.2. ठीक है, मैं रब करता हूँ, मास इज गिवन 1.2 kg. ठीक है,
हाँ, आई वॉज एक्सप्लेनिंग दिस, यहाँ पे कैसे हुआ ना, ठीक है, क्या है 2/0.1 है, सो इज इक्वल टू 2/0.1 को 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ मैं, yes or no, 10⁻⁻1, दिस कैन बी रिटन, सो 2 into 10⁻1, we know indices, right? अगर डिनोमिनेटर में 10⁻⁻1 है तो ऊपर जाके क्या होता है 10⁻1, which is becoming what 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, because क्या acceleration we found out. So now we have acceleration, we have mass, can we find force? वही क्वेश्चन में पूछा है कि we need to find force. So step number 3, ठीक है, force is equal to mass into acceleration. Force is equal to mass is 1.2 into acceleration is how much 20. So it becomes what 12 into 2, which is equal to 24 Newton. So force is equal to how much 24 Newton. Yes or no? समझा क्या किया? We did 3 steps. I'll explain the question again. Question में ऐसे बोला है, ठीक है? Okay. Question में क्या बोला है? क्या force acts for 0.1 second. मतलब यहाँ पे मैंने 0.1 सेकेंड क्यों लिया? बिकॉज उतने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई हो रहा है, जितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई होगा उतने टाइम के लिए बॉडी क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, मतलब एक्सेलरेशन के लिए टाइम मेरे को 0.1 लेना पड़ेगा सेकेंड्स, बिकॉज जितने अमाउंट के लिए मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तब तक बॉडी एक्सेलरेट होगा, ठीक है? एक बार एक्सेलरेट हो रहा है तो जैसे फोर्स अप्लाई करना बंद करेगा बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगा, बट यस बॉडी मूव करेगा, वो रेस्ट पे नहीं आएगा इतना जल्दी, यस और नो, बॉडी रेस्ट पे इतना जल्दी नहीं आएगा, बट एक्सेलरेशन नहीं होगा बॉडी। जितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया उतने टाइम के लिए बॉडी क्या होता है? एक्सेलरेट होता है, याद रहेगा, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन के टाइम 0.1 सेकंड लिया। What next thing they are talking about? The force then ceases to act and the body moves through 2 meters in next 1 second. मतलब बॉडी जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो बॉडी मूव कर रहा है 2 मीटर्स, ठीक है, इन 1 सेकेंड। दैट मीन्स मैं वो 2 मीटर्स जो अप्लाई कर रहा है और 1 सेकेंड का जो स्पीड है मैं फाइंड कर सकता हूँ। मुझे इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ था कि इनिशियली वो बॉडी रेस्ट पे है, सो नाउ u मिल गया, v मिल गया, ठीक है, मुझे फाइंड करना है फोर्स, आई रिक्वायर एक्सेलरेशन, आई यूज दिस फॉर्मूला। समझा कैसे फाइंड करना है? वेरी गुड, ठीक है, सो दिस वाज काइंड ऑफ अ नॉट ट्रिकी वन बट यस अ गुड क्वेश्चन, वी कैन से दैट, ठीक है, गुड क्वेश्चन, जहाँ पे क्या है लॉजिक भी अप्लाई करना है, ठीक है, कैलकुलेशन भी अप्लाई करना है, एवरीथिंग व्हाट वी नीड टू डील विद, ठीक है। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग का ब्रेन टेस्ट करते हैं कि लॉजिक है, थ्योरी पार्ट, कॉन्सेप्ट, ठीक है, एवरीथिंग इज व्हाट टेस्टिंग, ठीक है। सिंपल फर्स्ट वाला दैट वाज सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया, ठीक है, इजी था। नाउ वी आर मूविंग टू द व्हाट थर्ड क्वेश्चन, क्या बोला है? अ बॉल ऑफ मास 10 kg, 10 ग्राम सॉरी, ठीक है, लिखो 10 ग्राम्स, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे मास इज इक्वल टू कितना है? मास इज इक्वल टू 10 ग्राम्स, ठीक है, नंबर 1 यहाँ पे गिवन लिख रहा हूँ। फिर विथ अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, ओके, विथ अ वेलोसिटी, ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी लिखता हूँ, ठीक है, बिकॉज उसका इनिशियल वेलोसिटी है। ऑन अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑन द बॉल फॉर 2 सेकेंड्स, फोर्स अप्लाई हो रहा है फॉर 2 seconds, it acquires a velocity of, okay, final velocity of 70 meter per second. So ये initial velocity है, ठीक है, ये क्या है? final velocity है। जब मैंने क्या किया, मैंने फोर्स अप्लाई किया बॉडी के ऊपर, समझा नहीं समझा? मैंने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया बॉडी पे, when I applied a force on a particular body, उसका एक्सेलरेट हुआ, मतलब वो उसका स्पीड 50 से 70 हो गया। ये सुनो क्या क्या पूछा है? इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले 3 चीज करते हैं, ठीक है, देयर आर 5 थिंग्स दे आर टॉकिंग अबाउट, दे आर आस्किंग अबाउट 5 थिंग्स, वी नीड टू फाइंड 5 थिंग्स, ठीक है। सो एक एक करके फाइंड करेंगे। वी हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन, यस, सो व्हाट आई डू, आई जस्ट मेक अ पार्टीशन और समथिंग एंड आई राइट, या मेकिंग अ पार्टीशन, क्लियर है। सो फर्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज इनिशियल मोमेंटम, ओके, आई डू वन थिंग, आई जस्ट रब दिस, ओके, मैं गिवन यहाँ पे लिखता हूँ, गिवन इज इक्वल टू क्या क्या गिवन है? मास u टाइम v, v 70 मीटर पर सेकेंड है, u 50 मीटर पर सेकेंड है, टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया 2 seconds एंड मास इज 10 ग्राम्स, मास इज इक्वल टू क्या? 10 ग्राम्स, टाइम इज 2 seconds, यस और नो? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अभी फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज वी नीड टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू व्हाट? kg। सो 10 डिवाइड बाय क्या होगा? 1000। Always remember gram to kg divide by 1000. So आंसर क्या आएगा यहाँ पे? आंसर आएगा 0.01 kg। समझा नहीं समझा? 1/100 is 0.01, ये 0 0 कट हो जाएगा,
ठीक है, तो 0.01 kg। नाउ इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू mu, पता है हम लोग को mu इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए मास कितना है 0.01 इंटू u कितना है 50, 50 इंटू 0.01, आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 0. Can I write 0.01 into 5 into 10? Yes, ये दोनों क्या हो जाएगा 0.1 into 5, आंसर इज 0.5। मोमेंटम यूनिट क्या होगा मोमेंटम का? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, 0.5 केजी मीटर पर सेकेंड, समझा? यस और नो? सो वी फाउंड आउट द इनिशियल मोमेंटम, क्लियर है? अभी क्या करना? फाइनल मोमेंटम दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है? सो सेम थिंग आई विल फाइंड व्हाट फाइनल मोमेंटम, ठीक है? फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहेगा? सिर्फ चेंज हो जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये mu के जगह पे mv आ जाएगा, समझा? सो आई कैन रब दिस, ठीक है? इनिशियल के जगह पे आई विल राइट फाइनल, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू v हो जाएगा। मास कितना है 0.01, v कितना है ये रहा 70, सो आंसर विल बी 0.7 kg मीटर इंटू सेकेंड, समझा? यस और नो? सिंपल था। इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम हो गया। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, ये सेकंड चीज वी फाउंड आउट, ठीक है? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड चीज, थर्ड थिंग इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है? डेल्टा p इज इक्वल टू क्या है? मास इनटू डेल्टा v अपॉन t। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला ये है, मास कितना है 0.01 इंटू, ओके आई विल डू वन थिंग, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो 0.01 इंटू डेल्टा v, डेल्टा v मतलब v माइनस यू, v माइनस यू कितना है? v माइनस यू, तो आएगा 70 माइनस 50 अपॉन टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, ठीक है? सो आंसर क्या आएगा 0.01, ओके, इंटू आएगा तुम लोग का 20 अपॉन आएगा 2, आएगा 10, 10 इंटू 0.01, आंसर आएगा 0.1, क्या आएगा 0.1 kg मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या किया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम 2 सेकेंड्स है, m ये रहा 0.01 है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस u, 70 माइनस 50 आंसर है 20, 0.01 इंटू 20/2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 10s आ, ठीक है? तो 10 इंटू 0.01 इज 0.1 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है? सो दिस इज योर आंसर फॉर व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस इज योर आंसर फॉर व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट फाइंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ठीक है? सिंपल है, एक्सेलरेशन और फोर्स फाइंड करना है, वी कैन डू दैट, यस और नो? सो एक्सेलरेशन, फोर्थ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाय t, v कितना दिया हुआ है 70 माइनस 50/2, सो इट इज 20/2, आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज योर एक्सेलरेशन। सिंपल है, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाय t, सब्स्टिट्यूट किया, आंसर मिल गया, नथिंग, ये ना गिवन सामने है, सब कुछ है, ठीक है? सब कुछ गिवन है, दे आर गिवन एवरीथिंग, ओके? क्लियर है? Now the next thing, next and the last thing they are talking about find force. Force is equal to mass into acceleration. Acceleration कितना मिला? We got as 10, ठीक है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास कितना है? मास इज 0.01, क्लियर है? इज इक्वल टू इनटू क्या आ जाएगा आंसर 0.1 न्यूटन, F is equal to 0. न्यूटन, ठीक है? समझा? Now if you guys notice one thing कि तुम लोग का फोर्स एंड चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का आंसर सेम आया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का आंसर क्या आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आंसर 0.1 क्या आया तुम लोग का kg मीटर पर सेकेंड, दोनों का आंसर सेम आया। व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू व्हाट सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाई। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा उतना क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा? मोमेंटम होगा। सो दे बोथ आर इक्वल, समझा? यस और नो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको 0.1 न्यूटन अप्लाई किया तो इसका भी मोमेंटम क्या होगा? 0.1 से ही चेंज होगा। अगर यहाँ पे आंसर 100 आता तो 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे भी तुम लोग का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नॉट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी ऑल्सो 100।
there is a difference between change in momentum and rate of change of momentum. Change in momentum is only what? M into delta v. Rate of change of momentum is m into delta v by t with respect to time. Are you getting this? दोनों का आंसर सेम है. तो यस, यहाँ पे क्या होगा? प्रूफ हो गया कि हम लोग का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? करेक्ट है. यस और नो? ठीक है. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. थोड़ा सा लेंथी था बट बहुत इजी था. यस और नो? इट वाज लेंथी but it was easy. Yes guys, clear? Okay, very good. चलो we'll proceed. We'll do the last question, the fourth question. ठीक है, उसमें भी क्या they are asking two things. A cricket ball of mass 100 grams. The cricket ball of mass 100 grams moving. ठीक है, mass कितना दिया हुआ है? Mass is equal to 100 grams. ठीक है, moving with a speed of 30 meter per second. Moving with the speed of 30 meter per second. मैंने initial लिखा है because I don't know के exactly final में क्या है. Is brought to a rest. देखा final क्या हो गया? Brought to a rest meter per second in t is equal to 0.03 seconds. ठीक है. Find change in momentum of a ball, the average force. Now they are talking about change in momentum, right? ठीक है, change in momentum बोला है. So change in momentum, not rate of change of momentum, change in momentum. तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू क्या है तुम लोग का? डेल्टा वी. समझा? सो देयर आर टू मेथड्स व्हाट यू कैन डू. फर्स्ट, फाइंड इनिशियल मोमेंटम. सेकंड, फाइंड फाइनल मोमेंटम. फिर चेंज इन मोमेंटम में फाइनल माइनस इनिशियल करो. दिस इज वन ऑफ द मेथड. और डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करो. डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी. मास क्या दोनों में कॉमन है? कितना है मास? यहाँ पे 100 ग्राम्स. उसको किस में करना पड़ेगा? केजी में. तो इनटू क्या करूंगा? इक्वल टू 100 by 1000. आंसर क्या आएगा? 0.1. ये 0 कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा. 1 by 10 is 0.1 kg. 0.1 kg. डेल्टा v is what? v minus u is equal to v minus u कितना है? 0 minus 30. समझा? 0 minus 30. so क्या आएगा? 0 is equal to 0.1 into 0 minus 30. so answer will be what? Answer will be minus 3. So change in momentum is equal to how much? Yes, minus 3. ठीक है. So minus 3 is what basically indicating, negative sign indicates in opposite direction. That means there is a change in momentum but in opposite direction. So negative sign indicates opposite direction. So answer for this will be delta p will be equal to how much? 0. Okay, directly 0.1 into 30. Obviously negative sign is there. यहाँ पे नेगेटिव साइन, दिस इज जो नेगेटिव साइन मैंने रखा है यहाँ पे. सो आंसर विल बी -3 kg मीटर पर सेकेंड. समझा नहीं समझा? -3. सो नाउ हियर नेगेटिव साइन, यू हैव टू राइट द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द चेंज इन मोमेंटम हैज अकर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द चेंज इन मोमेंटम हैज अकर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. समझा? क्लियर है? यस. नाउ द नेक्स्ट थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, वन इज द सेम थिंग. सो लेट्स फाइंड एवरेज फोर्स. क्लियर है? ठीक है. सो इनिशियल मोमेंटम करो, फाइनल मोमेंटम करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, एक ही मिलेगा. या फिर डायरेक्ट ये वाला जो अभी फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट इज आल्सो करेक्ट. ठीक है, ये इजी है, फटाफट हो जाएगा. ठीक है, वहां पे थोड़ा लेंथी होगा. ठीक है, क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड व्हाट एवरेज फोर्स. मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन है अपने पास? नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है. सो पहले फाइंड करो एक्सेलरेशन. a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t. सो कितना है? 0 minus 30 by 0.03. So answer will be how much? 30 upon 3 into 10 raised to minus 2. Yes or no? 3 upon into 3. ये आ जाएगा आंसर 10 into क्या हो जाएगा? Is equal to क्या हो जाएगा? 10 into 10 raised square. तो आंसर आ जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Yes or no? Acceleration is how much? Acceleration is how much? 1000. ओके, क्लियर है? एक्सेलरेशन कितना मिला मुझे? 1000 मिला. यस, क्लियर गाइस? ओके, सो व्हाट वी कैन डू नाउ? वी नीड टू फाइंड व्हाट? फोर्स. सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास कितना है? 0.1 इनटू क्या है? 1000. ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन. समझा? यस और नो? कैसे 100 न्यूटन है? नाउ कैसे है ना, यहाँ पे एक मेथड किया मैंने. ठीक है, देयर इज वन मोर मेथड विथ व्हिच यू कैन फाइंड. वी नो दैट चेंज इन मोमेंटम
ठीक है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या तुम लोग का फोर्स। तो मोमेंटम फाइंड किया, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहेगा वही तुम लोग का फोर्स का आंसर रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिलाना क्या मिला -3, ठीक है, वही को टाइम से डिवाइड करोगे तो आंसर मिल जाएगा। कैसे देखो यहाँ पे डेल्टा पी चेंज ऑफ मोमेंटम है क्या है -3, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टाइम कितना है 0.03, यस और नो। क्या करूंगा ये -3 हटा दूंगा माइनस, क्योंकि हम लोग ने लिख लिया ऑलरेडी कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो हम लोग को पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। मेरे पास चेंज इन मोमेंटम है, रेट नहीं, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना है 0, क्या है तुम लोग का 3 अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ द टाइम क्या है 0.03 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻², 3 3 काट तो आंसर क्या आएगा 100 न्यूटन। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड जिसे हम लोग कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं फोर्स। हम लोग को पता है ये क्या है, लिखने का यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ वी कैन डू दैट ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। दिस वॉज अ लॉन्ग मेथड, दिस वॉज अ शॉर्टकट, वी हैव यूज्ड एप्लीकेशन, और हम लोग ने अप्लाई किया किसको, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, yes or no। So we are done with the solved example what were given in your textbook, ठीक है। So what we'll do, we'll start with the word the third law of motion, Newton's third law of motion, yes। Before that you guys have to solve the unsolved example which is given in your textbook. I'll be sharing the PDF, what homework exactly you have to do, okay। But if you have any doubts in this sums you can contact me on WhatsApp, okay, clear hai, yes, very good। Okay, so we'll be starting, as I told you, we'll be starting with what Newton's third law of motion, okay। So we'll just do a quick recap कि हम लोग ने first law और second law में क्या पढ़ा, ठीक है। First law we studied that if a force is applied, if a force is applied, ठीक है, if a force is applied there is a change in what, there is a change in state, rest बोलो या फिर मोशन बोलो, ठीक है। मतलब अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, तो दिस इज व्हाट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हैज गिवन मी कि अगर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो देयर इज अ चेंज इन स्टेट, आइदर वो रेस्ट से मोशन में जाएगा या फिर मोशन से क्या हो जाएगा रेस्ट में जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नाउ न्यूटन्स सेकंड लॉ, व्हाट न्यूटन्स सेकंड लॉ टोल्ड अस अबाउट इज इफ वी अप्लाई अ फोर्स, अगेन फोर्स इज अप्लाइड will bring change in its velocity, means there will be what acceleration in a body, this, or we can say there is a acceleration in body, there is a change in what acceleration, velocity क्या होगा change होगा तो body क्या होगा accelerate होगा। So फोर्स दोनों जगह पे क्या फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। सो इफ वी आर अप्लाइंग व्हाट अ फोर्स, ठीक है, इफ वी आर अप्लाइंग अ फोर्स देयर इज अ चेंज इन स्टेट, ठीक है। इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स देयर इज अ चेंज इन व्हाट वेलोसिटी, यस और नो। बट इन दोनों लॉ में दे आर नॉट मेंशन कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में अप्लाई करना है, फोर्स कौन से डायरेक्शन में अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई होता है। So the third law is all about this only. Again we are talking about force only, but we are talking about in which direction, in which convenient direction of force should be applied. Getting my point? So this was a quick recap about what Newton's first law and second law. Now what we are doing, मतलब ये जो second law था वहाँ पे change in velocity हुआ, मतलब basically momentum, force apply करने से momentum क्या होता है change होता है, yes or no, ठीक है। So acceleration and momentum वही same चीज यहाँ पे है, ठीक है। So now if we talk about the third law of motion, so the third law of motion is nothing but every action has what equal and opposite reaction। मतलब अगर मैं कोई भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, तो वो भी क्या करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस आर सेम बट द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट,
Okay, little confusing. Okay, what we'll do, we'll take an example and I explain that particular what the statement of what third law of motion. Let's take a table. Okay, this is your table. Now here on the table there are books which I have kept. Okay, there are what, there are few books which I have kept. Okay, these are the books. Okay, kind of a cake it looks. Okay, so I will do one thing, sorry for my drawing. Okay, it was kind of a cake. ठीक है, सो केक नहीं है, अपने को केक नहीं खाना है, अपने को क्या चाहिए, बुक्स चाहिए. लेट्स से यहाँ पे ऐसा बुक्स पड़ा हुआ है, यस और नो, यहाँ पे बुक्स पड़ा हुआ है. ठीक है, सो बुक्स क्या करता है, बुक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स खुद का वेट अप्लाई करता है, यस और नो. डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलवेज क्या करता है, बॉडी अप्लाइज इज फोर्स और अ वेट. हम लोग को पता है कि वेट एंड फोर्स both are equal only, right? Yes or no? Weight applied by a particular body is equal to the what, force applied by that particular body. So here always remember, all the bodies apply weight in the downward direction. That means in the direction of what, gravity. So gravity कौन से direction में act करता है, in the downward direction. We know that, right? Yes or no? अगर मैं तुम लोग को एग्जांपल दूं कि मेरे को क्या करना है, W फाइंड, वेट क्या करना है, वेट फाइंड करना है. तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू क्या होता है, G. मतलब मास के ऊपर जो ग्रेविटी एक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं वेट. ठीक है, व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू आल्सो व्हाट, m इनटू a, मास इनटू एक्सेलरेशन. सो इफ आई टेल यू कि एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का वैल्यू क्या सेम है, सो कैन आई से दैट f and w इज आल्सो इक्वल. वेट, f and w इज इक्वल. यस और दैट मींस व्हाटएवर वेट a body is applying, that is not nothing but what, your force. Yes or no? If your a and g का value is what, same, so always there will be a condition. ठीक है, if this two, 1 and 2, they both are what, equal, yes or no. ठीक है, then we can say w is equal to f. So the concept is, okay, I'll come back to the concept. The concept is, ये books है, books क्या कर रहा है, खुद का weight क्या कर रहा है, downward direction में apply कर रहा है, ये रहा weight, yes or no, or on for a better thing I'll write force. ठीक है, books are what, applying force in the downward direction. ठीक है. Now if I ask you a question कि ये books, अगर मैं बुक्स को टेबल पे रख रहा हूँ तो आर दे रेस्टिंग ऑन द टेबल और दे फॉल डाउन एंड दे मेक अ होल इन द व्हाट टेबल, यस और नो, और नीचे गिर जाता है, ऐसा होता है. व्हाट विल बी योर आंसर, सर आंसर विल बी कि सर वो बुक्स वहां पे ही रहेगा, सर वो टेबल से नीचे नहीं गिरेगा, मतलब वो टेबल में होल नहीं करेगा और नीचे नहीं चला जाएगा. द रीजन इज दैट, व्हाट इज द रीजन कि वो टेबल पे क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है. व्हाई, द रीजन इज दैट कि वो टेबल पे क्या कर रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब द टेबल इज आल्सो व्हाट, बेसिकली अप्लाइंग अ फोर्स. सो इफ यू गाइस रिमेंबर, हम लोग ने कांटेक्ट फोर्स पढ़ा था एंड कांटेक्ट फोर्स में सेम एग्जांपल लिया था. सो कांटेक्ट फोर्स में वो फोर्स का नाम क्या था, रिजल्टेंट फोर्स. यस और नो, दैट वाज योर रिजल्टेंट फोर्स. क्लियर है, याद है तुम लोग को, यस और नो, यस क्लियर है. ठीक है, सो वी हैड स्टडीड दैट पर्टिकुलर थिंग, यस और नो. मैंने सेम डायग्राम ड्रॉ किया था फॉर यू गाइस कि वहां पे टेबल पे है, एवरीथिंग इज देयर, देयर इज अ कांटेक्ट इन बिटवीन, यस और नो. सो दिस इज व्हाट बेसिकली योर फोर्स व्हिच वी आर व्हाट टॉकिंग अबाउट, यस और नो. आई यू गाइस आर क्लियर. ठीक है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉट अ रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन और काइंड ऑफ इट इज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, सो दिस फोर्स वी हैड स्टडीड. क्लियर है. सो ये जो है वो क्या, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही है कि ये नीचे से क्या कर रहा है, नीचे से भी क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है. कौन, टेबल अप्लाई कर रहा है, यस और नो. सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. तो ये जो भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के हम लोग ने एग्जांपल देखे, दैट इज नथिंग बट व्हाट, न्यूटन्स थर्ड लॉ. दे आर ओबेइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ. दैट मींस ईच बॉडी, ठीक है, अप्लाइज, ठीक है, फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड that particular body also applies a force with the same magnitude in opposite direction. समझा नहीं समझा? That means the statement is, if two bodies are in contact with each other, yes or no, so one body will apply force of a particular magnitude, yes or no, and other body will also apply the force with the same magnitude but opposite in direction. दिख रहा है, जैसे ये रहा. ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, बुक्स, बट ये टेबल है वो भी क्या कर रहा है, उसके ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है. यस और नो, दैट मींस इक्वल एंड ऑपोजिट. एवरी एक्शन, यहाँ पे एक्शन क्या है कि बुक्स क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट. इक्वल मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो जो भी एक्शन परफॉर्म करोगे, जितना तुम लोग फोर्स अप्लाई करोगे पर्टिकुलर बॉडी पे, वो भी क्या करेगा, खुद का रिएक्शन क्या करेगा, अप्लाई करेगा. यस और नो. सो वही है ना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. ओके,
रिएक्शन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो हम लोग ने कॉन्टैक्ट फोर्स स्टार्टिंग में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट. यस, force downwards, table force upwards. Every action has equal and opposite reaction. This is your Newton's third law statement. Yes or no? Clear है? ठीक है? So we'll study few of the examples. Yes, बस तुम लोग का ये third law of motion इतना ही था, कुछ difficult नहीं है. This is again all about what theories and everything. ठीक है? So I'll give you few of the example. ठीक है? What they have given, consider a book lying on the table. The weight of the book acts vertically downwards. ओके मैंने रब कर दिया, बट तुम लोगों को पता है बुक्स क्या कर रहा था, वर्टिकली डाउनवर्ड्स क्या कर रहा था, अप्लाई कर रहा था. यस, नाउ इट इंप्लाइज दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बुक इज जीरो. अभी रिजल्टेंट फोर्स मतलब बुक मूव कर रहा है क्या, मैंने भी क्वेश्चन पूछा कि बुक मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है. सो अगर बुक मूव नहीं कर रहा है दैट मींस रिजल्टेंट फोर्स जीरो है. यस और नो, मतलब उसके ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक डाउनवर्ड्स तो बुक खुद का कर रहा है और अपवर्ड्स भी क्या कर रहा है, टेबल फोर्स अप्लाई कर रहा है, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या सेम है. ठीक है, इफ आई गिव यू अगेन द सेम एग्जांपल, चलो ड्रॉ करता हूं वापस. ये तुम लोग का है और ये तुम लोग का बुक है. ये बुक है तुम लोग का, अप्लाई कर रहा है लेट्स से फोर्स ऑफ लेट्स से 100 न्यूटन. ठीक है, ये रहा तुम लोग का F1 और ये क्या तुम लोग का F2 जो क्या कर रहा है, टेबल एक्सर्ट कर रहा है. सो टेबल एक्सर्ट कर रहा है F1, सॉरी बुक एक्सर्ट कर रहा है F1 और F2 टेबल एक्सर्ट कर रहा है तुम लोग का. यहाँ पे बुक लिख देता हूँ, बुक और यहाँ पे टेबल. ठीक है, यहाँ पे भी बुक ले लेता हूँ और यहाँ पे टेबल लिखता हूँ, सो दैट तुम लोग क्लियरली समझ रहे हो. Force applied by the book is 100 Newton. Force applied by the table is also 100 Newton, but negative. So what exactly negative sign indicates? The negative sign indicates that is opposite in direction. So अगर दोनों का resultant find करूँगा, resultant मतलब यहाँ पे resultant find करना है. So resultant मतलब दोनों का sum of both the forces क्या होगा, 100 plus minus 100. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, force applied by the book plus force applied by the table. टोटल रिजल्टेंट, ये R है, टोटल रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स अप्लाई बाय द बुक प्लस फोर्स अप्लाई बाय द टेबल. बुक ने 100 किया, इसने माइनस 100 किया, आंसर क्या आया, 0. सो दिस इज योर व्हाट, 0 न्यूटन. सो योर रिजल्टेंट फोर्स इज 0 न्यूटन. समझ रहा है तुम लोग को, दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर देता है. यस और नो, दैट मींस योर फोर्स अप्लाइड by both the bodies are equal in magnitude but opposite in direction. अगर बुक डाउनवर्ड्स अप्लाई कर रहा है तो उतना अमाउंट ऑफ टेबल क्या करेगा, अपवर्ड्स फोर्स अप्लाई करता है. तो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ व्हाट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. वेरी गुड. ठीक है, आई विल गिव यू फ्यू मोर एग्जांपल्स. अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि आई एम वॉकिंग ऑन अ व्हाट फ्लोर, यू गाइस आर आल्सो वॉकिंग ऑन द फ्लोर. Why we can walk on the particular floor or a ground or something? Yes or no? Reason is same. When I'm walking, I'm applying. ठीक है, I'm exerting a particular force on that particular body. ठीक है, okay, I'll explain. कि when I'm walking, my body is applying some force on the floor, and floor is also applying the equal magnitude force but in opposite direction. Let's say मैं 150 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ while walking, मैं 150 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ किस पे, फ्लोर पे. ये रहा फ्लोर पे उतना इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स 150 न्यूटन अप्लाई कर रहा है मेरे पे. ठीक है, बट वो मेरे पे अप्लाई कर रहा है बट ऑपोजिट डायरेक्शन. दैट्स व्हाई आई कैन स्टैंड. मैं भी व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर, बिकॉज द रीजन इज दैट माय फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द व्हाट, द ग्राउंड्स फोर्स. ग्राउंड जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है मेरे पे और मैं जितना ग्राउंड पे अप्लाई कर रहा हूँ, द रिजल्टेंट इज व्हाट, हियर आल्सो 0. दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ. समझा? तो जो फ्लोर और ग्राउंड है वो मेरे पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है. गेटिंग माय पॉइंट. और मैंने और एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, एलिफेंट का. ठीक है, आई एम नॉट हियर टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ लेमन एग्जांपल एलिफेंट का लेके. ठीक है, एनिमल को मैं कुछ बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ. ओनली थिंग इज आई एम टेलिंग यू, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. एक नॉर्मल चेयर होगा, वी नो दैट एलिफेंट इज व्हाट बेसिकली हैज अ ह्यूज वेट. ठीक है, यस और नो, मींस वेरी हेवी बॉडी. क्लियर? यस. सो एलिफेंट है, अगर मैं पर्टिकुलर चेयर है मेरे पास घर पे, वो एलिफेंट को वो चेयर पे बिठाने का ट्राई करूंगा, वो चेयर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, विल ब्रेक डाउन बिकॉज ऑफ इट्स वेट, ऑब्वियस रीजन. ठीक है, आई एम नॉट, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट हर्टिंग एनीवन सेंटिमेंट. आई एम नॉट हियर टू लाइक talk about bad things. I'm just giving you a layman example. Yes, elephant है जिसका weight ज़्यादा है, चेयर पे अगर पैर रखेगा, that chair will break down because the weight of the elephant is greater. The weight which elephant applies on the particular chair, yes or no, the chair is not applying the equal and opposite force. Chair is applying force, but the only thing is, okay, I'll give you the number वाला example. Okay.
ठीक है. So I have what force of what elephant and I have force of what basically chair. ठीक है. Force of elephant is let's say 500 Newton, but force of chair is what only 100 Newton. Yes or no? But obviously in opposite direction. So resultant force will be equal to क्या रहेगा, force of elephant plus force of क्या रहेगा chair, which is 500 plus of minus 100 which is 400 Newton. तो तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 400 न्यूटन. मतलब वो जब भी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है चेयर के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में, तो 400 न्यूटन ज्यादा अप्लाई कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो चेयर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. समझा. यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट बैलेंस नहीं हुआ, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो गया, यहाँ पे ओबे नहीं कर रहा है. दैट्स व्हाई द चेयर हैज ब्रोकन डाउन. समझा. यस और नो. बट व्हाई वी गाइस आर स्टैंडिंग हियर, अगेन द रीजन इज बिकॉज our weight is balanced by the what, the floor, the chair, the sofa and all the other things. Yes or no? Because they are balanced. Getting my point? Yes or no? I give you one more example when we were studying non-contact forces, contact forces, right? If we cannot walk on the water, the reason is same. ठीक है. Reason is what similar. कि यहाँ पे क्या है, weight ज़्यादा है, obviously वो break हो जाता है. अभी same thing when we try to walk on the water, we cannot. The reason is that we are applying some force, and that force is greater than the force applied by the water. See, water also applies force. ऐसा नहीं कि water force apply नहीं कर रहा है. Otherwise कोई भी चीज क्या होता है, ऊपर float नहीं होता. Water also applies its force. Yes or no? That force is known as upthrust. Yes, it also applies. Water भी apply करता है force. But only thing is when we try to walk on the water, we cannot. Only reason is that because our body weight is greater than the what. The force applied by that particular water, and no man or no human or no living thing, yes or no, plant छोड़ दो, ठीक है, living thing में I am just talking about animals and other things, they cannot basically walk on the water. Insects and everything भी छोड़ दो, ठीक है, exceptions है obviously. जो तुम बोल रहे सर आप कुछ भी बोल रहे हो, those are not there. ठीक है. Humans, चलो humans cannot walk. Clear? Okay. So we'll see the exact statement what the textbook has given about the Newton's third law of motion. So what exactly statement they have given? We'll see the statement and we'll do more examples also on that particular Newton's third law of motion. Okay. So what exactly statement they have given? The statement is what? In the interaction of two bodies A and B, the magnitude of reaction. ठीक है. मतलब reaction मतलब जो body apply कर रहा है, मतलब A body क्या कर रहा है, B पे reaction कर रहा है. ठीक है. The magnitude of reaction, ठीक है, on the body B is equal to the magnitude of what, the action which applied by that particular body. Yes, there is an action and reaction. Yes or no? Action कौन apply कर रहा है, body A body B पे. Reaction कौन apply कर रहा है, body B body A पे. दोनों का magnitude equal है but in opposite direction. So same thing statement they have explained. Yes or no? So now to demonstrate, now we need to demonstrate. अभी हम लोग को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करना है. अभी तक तो हम लोग एग्जांपल जो मैंने तुम लोग को दिया, दैट वाज ऑल हाइपोथेटिकल. वी कैन वॉक ऑन द फ्लोर, वी कैन नॉट वॉक ऑन द वाटर. ठीक है. एलिफेंट एग्जांपल, ऑल वे हाइपोथेटिकल. बट वी नीड टू प्रूव दैट पर्टिकुलर थिंग कि यस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई होता है. सो हाउ डज वी प्रूव दैट देयर इज अ व्हाट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाइड? सो नाउ वी हैव टू टेक अ स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस लो. स्प्रिंग बैलेंस में दो स्प्रिंग बैलेंस होगा विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर. गो टू द टेक्स्ट बुक, लुक एट पेज नंबर 71, डायग्राम 3.12 स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है. प्लीज टेक आउट योर टेक्स्ट बुक. डायग्राम सामने होगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा, प्लीज. ओके. या सो इन दैट पर्टिकुलर डायग्राम इफ यू चेक देयर आर टू स्प्रिंग बैलेंस, both are connected to each other. There is a hook on the one of the side. That hook is attached to what, a rigid support. एक rigid support उसके साथ attached है. And मैं क्या कर रहा हूँ, वो particular चीज को क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, pull कर रहा हूँ. ठीक है. one of the ends से मैं उसको pull कर रहा हूँ. So there are equal and opposite forces. दोनों में क्या रहेगा, रीडिंग दिया, स्केल्स दिया हुआ है, तो दोनों में रीडिंग दिया हुआ है, दोनों में रीडिंग क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. इधर 40 है, उधर भी 40 है, इधर 70 है, इधर भी 70 है, इधर 100, इधर भी 100, बट इक्वल मैग्नीट्यूड है. बट ऑब्वियसली डायरेक्शंस आर ऑपोजिट. सो इफ यू चेक द डायरेक्शन, जहां से मैं पुल कर रहा हूँ, ठीक है, उसका डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे है, और जहां से वो क्या कर रहा है, हुक से रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच्ड है, वो कौन से, मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहां से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. So both the directions are opposite, but the magnitude is same. So this was your experimental thing or demonstration. Yes, Newton's second law of motion, third law of motion exists. Yes, and it is true.
समझा? थे डेमोन्स्ट्रेशन था, जैसे हम लोग ने डेमोन्स्ट्रेशन किसका किया, न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ का किया था, वैसे इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया कि कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि यस दिस एग्जिस्ट. गेटिंग माय पॉइंट? yes or no? Now what we'll do, we'll study few more example. Okay, there are few examples which I need to explain. So first example which I explain will be the example of table हो गया, ठीक है, example of table walking on this thing, ठीक है. I'll explain the example of gun, ठीक है. So have you guys seen a gun, ठीक है, एक बड़ा सा स्नाइपर गन, ठीक है. So what happens is that स्नाइपर गन के टाइम, ठीक है, when you are just shooting a particular with a let's say gun, so what happens is तुम लोग को जब ये शूट करते हो, ठीक है, थोड़ा सा बैकवर्ड जर्क आता है विद द गन. अगर तुम लोग ने पबजी या सीओडी या फिर काउंटर स्ट्राइक खेला है या फिर मूवीज देखे जहाँ पे गन फायर होता है, गन के शॉट्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कैसे तुम लोग एक्सपीरियंस देखा रहेगा कि वो गन है थोड़ा बैकवर्ड्स आता है. समझा? यस और नो? गन इज कमिंग ऑन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड बुलेट इज गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. यस और नो? सो दिस इज योर एक्शन एंड रिएक्शन. ये बुलेट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, गन के ऊपर फोर्स अप्लाई किया विच इज कमिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन. बट द क्वेश्चन इज, सर आपने बोला था इक्वल फोर्स अप्लाई होगा दोनों पे. सो इक्वल फोर्स दोनों का क्या होना चाहिए, डिस्टेंस भी इक्वल कवर होना चाहिए, एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए. हाँ करेक्ट होना चाहिए, बट लुक एट द मास ऑफ अ गन एंड मास ऑफ द बुलेट. सो इफ वी कंपेयर बोथ ऑफ देम, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मास ऑफ गन एंड मास ऑफ बुलेट, ठीक है. यहाँ पे 0. लेट्स से यहाँ पे 10 kg लूंगा और यहाँ पे लूंगा 0.5. यस और नो? दोनों पे फोर्स अप्लाई which is let's say 100 न्यूटन. yes or no? 100 न्यूटन है दोनों के ऊपर, ठीक है. सो दोनों का डिस्टेंस ये क्या रहेगा, लेसर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिकॉज ऑफ इट्स मास. इसके पास मास बहुत ज्यादा है एंड ये क्या करेगा, डिस्टेंस क्या करेगा, लार्जर डिस्टेंस कवर करेगा. रीजन इज दैट, व्हाई? बिकॉज रीजन इज दैट इसका मास इज व्हाट, लेसर. सिर्फ 0.5 kg है, ओनली 0.5 kg, फोर्स 100 न्यूटन है. यहाँ पे 10 kg पे 100 न्यूटन है. सो अनफेयर, नॉट अनफेयर बट दिस इज द थिंग कि हमेशा बुलेट छोटा ही होता है, मास कम होता है, ठीक है, बट गन का मास बहुत ज्यादा होता है. इसलिए गन क्या करता है, सिर्फ थोड़ा सा बैकवर्ड जर्क मिलता है, थोड़ा सा मूव करता है इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, मिलीमीटर्स. बट बुलेट ट्रैवल्स व्हाट, अ लॉन्ग डिस्टेंस, मे बी 15-20 मीटर्स, डिपेंड कौन सा गन यूज करते हो. यस और नो? सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. Okay, there is an action जहाँ पे bullet is traveling in a forward direction, but gun is traveling in a opposite direction with the same magnitude of force. Yes or no? They are traveling different distance because of their weight. The reason is because of their masses, because of their weights. Clear है? Now, I'll take one more example. Yes, I'll take an example of rocket. फिर रॉकेट में कैसे होता है कि हम लोग ने देखा है, लेट्स अज्यूम ये रॉकेट है, तो रॉकेट के अंदर केमिकल्स होते हैं. वो केमिकल्स क्या करते हैं, बर्न करते हैं एंड बाहर फायर को एक्सपेल करते हैं. फायर इज कमिंग आउट. जैसे वो फायर इज कमिंग आउट, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर पे क्या करता है, प्रेशर एंड फोर्स अप्लाई करता है. एंड वो एटमॉस्फेयर भी क्या करता है, इक्वल एंड ऑपोजिट क्या करता है, प्रेशर एंड फोर्स अप्लाई इसके ऊपर करता है. यस, एंड इसकी वजह से ये अपने आप को पुश करता है, ठीक है, अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट, ये तुम लोग का एटमॉस्फेयर है, ये तुम लोग का क्या है, रॉकेट है. ये यहाँ से क्या हो रहा है, फायर को एक्सर्ट कर रहा है. तो वो क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट खुद को क्या कर रहा है, पुश करके फॉरवर्ड चला जाता है. समझा? बट दैट मींस इट इज अप्लाइंग व्हाट, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो एटमॉस्फेयर पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से विल गो बैकवर्ड्स. समझा नहीं समझा? दिस इज द रीजन रॉकेट इज गोइंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर व्हाट, एटमॉस्फेयर. यस और नो? सिमिलर वे मैं अगर ग्राउंड पे अगर तुम लोग रॉकेट ऐसे है ग्राउंड पे, तो ये क्या करेगा, फोर्स कहाँ पे अप्लाई करेगा, जो भी फायर वाला जो केमिकल था वो जो एक्सपेल कर रहा है आउट, गिविंग आउट, वो अर्थ पे नीचे अप्लाई करेगा. लेट्स से अर्थ पे नीचे अप्लाई करेगा, खुद को ऊपर पुश करेगा. समझा? अर्थ भी क्या करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा है. इसकी वजह से वो रॉकेट अपने आप को अपवर्ड्स पुश करेगा एंड इट विल गो. समझा नहीं समझा? यस और नो? दिस आर द रीजन ऑफ व्हाट, इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. आई गिव यू वन मोर एग्जांपल. ठीक है, आई डोंट नो इफ यू हैव एक्सपीरियंस और नॉट. ठीक है, व्हेन यू आर गेटिंग आउट ऑफ अ बोट, ठीक है, बोट पे ट्रैवल कर रहे हो, यस और नो, बोट पे आ गए तुम लोग, अभी लैंड पे आ गए, ठीक है, क्लोजर टू अ लैंड, नाउ यू हैव टू गेट आउट. ठीक है, तुम लोग को वहां से बाहर निकलना है. सो व्हाट हैपेंस इज दैट समटाइम्स देयर इज अ फियर कि अरे वहां पे थोड़ा सा गैप है, वाटर में तुम लोग गिर जाओगे. सो व्हाट यू डू, यू जस्ट व्हेन यू आर गेटिंग आउट, यू जस्ट पुश द बोट विथ योर लेग अ लिटिल, ठीक है, एंड यू जंप. सो व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम, योर बॉडी is going forward because you have pushed that particular boat in the backward direction. तो body is going forward. मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो, बोट को पुश करके तुम लोग आगे जा रहे हो.
but boat is going backwards because of that force applied. So both of them are applying equal and opposite force. Yes or no? And because they are applying equal and opposite force, body is going forward and boat is going backwards because they are applying in the opposite direction. See, motion of the boat away from the what? The shore while stepping out. In order to get out of the boat, man exerts a force on the boat. Okay? This creates a force of reaction which enables him to what? Step out of the boat. At the same instant, the boat tends to leave the shore due to the what? Force exerted. For the safety passenger, the boatman ties the what? Boat. So यहाँ पे कैसे होता है? काफी टाइम अभी मैं बाहर आने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ बोट पे. सो बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ बाहर आने का, बट बोट क्या करता है? बैकवर्ड्स मूव हो जाता है. तो डिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. इसकी वजह से जो बोटमैन होता है वो क्या करता है? वो रोप से क्या करता है? लैंड पे टाई कर देता है, सो दैट वो बोट मूव ना करे. देखा रहेगा ना? सो दैट वी कैन इजीली व्हाट? जंप. एंड तभी क्या करेगा? बोट उतना ही अमाउंट ऑफ क्या करेगा? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा हमारे पे एंड विल गेट आउट. जब तक वो रोप के साथ बांधा हुआ नहीं है, बोट धीरे धीरे पीछे चलता जाएगा. समझा नहीं समझा? तो दिस इज व्हाट अगेन एग्जांपल ऑफ व्हाट? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. यस और नो? ठीक है. एक्शन एंड रिएक्शंस क्लियर है? ठीक है. सेम कैचिंग अ बॉल, सेम चीज रहेगा. कैचिंग अ बॉल में क्या रहेगा? व्हाइल कैचिंग अ बॉल, द बॉल एक्सर्ट्स अ फोर्स on the palm, the cricketer and the cricketer exerts a equal force. मतलब जब भी तुम लोग कैच करते हो, what happens when you are catching a ball? तो बॉल क्या कर रहा है? मेरे हैंड पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उतना अमाउंट ऑफ मेरे दोनों पाम क्या कर रहे हैं? उस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. मैं ऐसे कैच कर देता हूँ. सो जैसे मैंने इक्वल फोर्स एक्सर्ट किया, वो मोशन में था, वो रेस्ट पे आ गया. मेरा हैंड भी ऐसे मोशन में था, रेस्ट पे आ गया. सो आई एम स्टॉपिंग दैट पर्टिकुलर बॉल. सो दिस हैपेंस ऑलवेज. So these are the what examples of your Newton's third law of motion, which states that every action has what? Equal and opposite reaction. So this were the examples. Now I'll give you some guidelines. Whatever examples we had done in inertia of rest and inertia of motion, yes or no? Whatever example right now we did, all the examples, there are high chance that they are going to ask in a give reason. The question will be something like this: why we can walk on the floor? ठीक है. Why a rocket can go upwards? Yes or no? ठीक है. Why the book on the table, ठीक है, is on the rest? Yes or no? Why a man is coming out of the boat, ठीक है, ties the what? Rope to the land. ठीक है. तो ये सब give reason में पूछ सकते हैं. Why? Explain. So please go through those examples very nicely. I have tried and explained each and everything. ठीक है. Yes, मैंने सब examples explain किया, but still please follow those examples. Those are the give reason of this chapters, and they are going to ask for sure for 6 marks. Yes or no? ठीक है. 4 to 6 marks का give reason आएगा ही आएगा. Getting my point? Yes. So what I suggest is that take out your book whenever you are watching my video. Take out your book, textbook, notebook, pen, pencil, paper, everything, and please note down each and everything which I am telling you. जैसे मैंने formulas बोला, जैसे मैंने statement बोला, please note down each and everything and keep your textbook beside you so that you can see, अरे sir ये concept explain किया, what exactly they have written. Yes or no? So go through that textbook also while watching the video. Pause the video, go through the textbook, see my video, pause video, go through the textbook. This repetition continuous. एक movie जैसे मेरा अगर video देखोगे, you are not going to understand anything. Yes or no? You're not going to understand anything if एक movie जैसे तुम लोग video देख रहे हो. तो please make sure you pause in between, you take reference of your textbook, go through your textbook, and again continue with my textbook. And while solving sums, please follow the same thing. कि तुम लोग, मैं जब भी solved example solve कर रहा हूँ, you know the question because तुम्हारे पास textbook है. So what you can do, pause the video, solve by yourself. मैंने एक बार explain कर लिया, कभी खुद से solve करो solved example. Yes or no? Please follow this instruction for all the videos, not for science, maths, bio, or other videos. Please. Yes, I hope you have understood all the concept what we have discussed today in today's lecture. If you have any doubt, you can ask me, you can call me, you can WhatsApp me. Okay? Thank you.